Good morning, dear students. In the previous class, we have talked about mainly the immunity. We have discussed about the acquired immunity and the components of acquired immunity. The components of acquired immunity includes mainly the humoral immunity and the cellular immunity. That is, one was mediated by antibodies which were released by the B cells and the plasma cells, whereas the cellular immunity mainly involves the different types of T cells like T helper cells, T cytotoxic cells, suppressor cells and memory T cells. Next, we have also discussed about what is active and passive immunity. In both active and passive, we have talked about that when it will be known as a natural active or a passive immunity, and when it can be known as a artificial active or a passive immunity. Now, immunity, which was a very important concept, in which when we talk about acquired immunity, the development of the antibody is going to occur on the entrance of an antigen. What is an antigen first of all? Antigen is any foreign substance. A foreign substance that can be a bacteria, that can be a pathogen. In nature, it can be protein, it can be even nucleic acid or a carbohydrate. Right? It's not necessary that the whole pathogen should enter for being considered to be a source for just generating the immunity. Right? It can be even a part of it. It can even be a protein of a bacteria that is responsible for making of antibodies in our body. So in that case, we will be discussing about what is antigen, what is the nature of antigen, and we will be discussing about the types of antigen. So antigen, first of all, we will mention the definition that antigen is a substance. Antigen is a substance that induces the formation of antibody in our body. एंटीजन एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी में एंटर होने पर क्या इंड्यूस करता है? प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडी. राइट? एंटीजन मतलब कोई ऐसा सब्सटेंस है जो एक बार हमारी बॉडी में एंटर हो तो इट विल इंड्यूस द सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडी इन आवर बॉडी. अगर एंटीजन के नेचर की बात की तो एंटीजन कैन बी nature of the antigen, it can be either protein, it can be either carbohydrate or it can be a nucleic acid. Right? जो एंटीजन का अगर नेचर पूछा जाए कि एंटीजन नेचर में क्या होता है, तो ये तो हमें पता है एंटीजन मतलब बाहर से कोई बैक्टीरिया या पैथोजन या वायरस या कुछ भी एंटर हो ना, वो एंटीजन ही है. राइट? वो फॉरेन एंटीजन है. पर ये फॉरेन एंटीजन का नेचर क्या हो सकता है? तो वो प्रोटीन भी हो सकता है, या तो कोई बैक्टीरिया में से कोई ग्लाइकोप्रोटीन हो सकता है, या तो उनका कोई कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, या उनका सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन या एनीथिंग. Right? Any such component which induces formation of antibody in our body will be referred as an antigen. ठीक है? अगर हम एंटीजन के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है that antigens have special receptors, specialized receptor-like structures which are known as epitopes. They are known as epitopes, and the another word for it is antigenic determinants. Antigenic
डिटर्मिनेंट्स। एक एंटीजन के पास क्या होता है, तो अगर ये एक एंटीजन है, कंसिडर दिस टू बी अ स्मॉल एंटीजन, राइट, ये कोई बैक्टीरिया है, कोई पैथोजन है, उनका कोई प्रोटीन है या कुछ भी है, तो एंटीजन के सरफेस पे स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स होते हैं और इन रिसेप्टर्स को क्या कहते हैं, इन्हें कहा जाता है एपिटॉप्स या तो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स। ये एपिटॉप्स या एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स क्या फंक्शन करते हैं, तो दीज आर द स्ट्रक्चर्स विच आर गोइंग टू बी रिकॉग्नाइज्ड by the antibody. Antigenic determinants are going to be recognized by the antibody. तो antibody जो होगा that is going to recognize what? That is going to recognize the epitopes which are special receptors present on the antigen. जो एंटीजन है उसके सरफेस पे ऐसे स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें कौन रिकॉग्नाइज करता है, एंटीबॉडी रिकॉग्नाइज करता है, और फिर ही ये एंटीबॉडी स्पेसिफिकली ये एंटीजन के पास अटैच हो जाएगा। सो वाई शेप्ड एंटीबॉडी, लाइक फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द एंटीबॉडी, इट विल बी लाइक दिस, वाई शेप्ड एंटीबॉडी इज गोइंग टू अटैच टू टू सच एपिटॉप्स व्हिच आर प्रेजेंट, मतलब दो बाइंडिंग साइट्स है which are present on the antigen. So we will mention that the Y-shaped antibody attaches with two epitopes, या तो हम कह सकते हैं there will be two binding sites and this will result into antigen antibody interaction. It can even be responsible for, it can even bind to two similar epitopes on two different antigen. ऐसा भी हो सकता है कि दो अलग एंटीजन है पर उनके पास सिमिलर तरह के एपिटॉप्स है, ठीक है, दो एंटीजन्स है, मान लीजिए यहाँ पे दो एंटीजन्स है पर दोनों पे जो एपिटॉप है, राइट, एपिटॉप क्या है, रिकॉग्निशन साइट है, वो सेम है, तो यहाँ पे एंटीबॉडी जो है वाई शेप्ड एंटीबॉडी ये दोनों ही एंटीजन के साथ में अटैच हो जाएगा। द एंटीबॉडी विल अटैच टू two epitopes on two different antigens, but the epitopes should be same. In this case, it will result into this interaction of antigen antibody will result into agglutination. What will happen? Agglutination, or you can say clumping. एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन हो जाएगा और इसी की वजह से एंटीजन जो है वो ग्रुप हो जाएंगे एंड दे वुड नॉट बी एबल टू स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. दिस इज वन अनदर मैकेनिज्म बाय व्हिच द स्प्रेड ऑफ द एंटीजन कैन बी रिड्यूस्ड. समझिए अभी तक हमने क्या कहा है कि एंटीजन सबसे पहले होता क्या है. एंटीजन एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी में इंड्यूस करता है फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीबॉडी फॉर्मेशन को ये इंड्यूस करता है. दूसरा, अगर उसके नेचर की बात करें तो एंटीजन कोई प्रोटीन भी हो सकता है, कोई लिपिड या कोई कार्बोहाइड्रेट या न्यूक्लिक एसिड भी हो सकता है. यही जो एंटीजन है उनके सरफेस पे स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स होते हैं और इन रिसेप्टर्स को क्या कहा जाता है, एपिटोप्स कहा जाता है या तो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स कहा जाता है. यही एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स को आइडेंटिफाई कर लेता है एंटीबॉडी, जो किसने रिलीज किया है, हमारे बी सेल्स ने रिलीज किया है. और ये वाई शेप्ड एंटीबॉडी जाके यही दो एपिटॉप्स को अटैच हो जाता है. एंटीजन की सरफेस पे रहने वाले सारे ही एपिटॉप्स नियरली सेम होते हैं. दूसरी चीज ये कि वाई शेप्ड एंटीबॉडी जाके अटैच हो जाता है टू द एपिटॉप्स विच आर द बाइंडिंग साइट्स. दूसरी चीज कि कई बार क्या होता है कि दो अलग एंटीजन पे सिमिलर एपिटॉप्स होते हैं,
तो यहाँ पे एंटीबॉडी दोनों एपिटॉप्स के साथ में अटैच हो जाएगा एंड दिस विल रिजल्ट इनटू द एग्लूटिनेशन और द क्लम्पिंग एंड दिस विल प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द फर्दर एंटीजन. Another thing is that antigens on the basis of the function, based on its function, the antigen can be of two types. On the basis of its function, function के basis पे एंटीजन दो तरह के होते हैं. एक होते हैं कंप्लीट एंटीजेंस. कंप्लीट एंटीजन, तो एंटीजन को कंप्लीट कब कहा जाता है? कंप्लीट एंटीजेंस मतलब द एंटीजेंस विच इंड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी once they enter in our body, they are known as complete antigens. So complete antigens induce the formation of antibody once they enter into our body. हमारी बॉडी में एंटर होने पर इमीडिएटली जब एंटीबॉडी फॉर्मेशन को इंड्यूस करता है तो वो कंप्लीट एंटीजन है. दूसरा ये होता है कि इनकम्प्लीट एंटीजेंस भी होते हैं. इनकम्प्लीट एंटीजेंस को और एक वर्ड दिया गया है एंड दैट इज हेप्टेंस. इनकम्प्लीट एंटीजेंस आर नोन एज हेप्टेंस. और हेप्टेंस जो होते हैं दे डू नॉट इंड्यूस, मतलब एंटर होने पर वो खुद ब खुद इंड्यूस नहीं कर सकते एंटीबॉडी फॉर्मेशन. सो हेप्टेंस डू नॉट इंड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी. ये एंटीबॉडी फॉर्मेशन तभी स्टिम्युलेट कर पाते हैं जब ये कोई और प्रोटीन के साथ, कोई और केमिकल के साथ कंबाइन हो. मतलब बॉडी में एंटर होने पर हेप्टेंस अगर एंटर हुए हैं तो ये एंटीबॉडी प्रोडक्शन को स्टिम्युलेट करते नहीं है. सिर्फ और सिर्फ ऐसा हो सकता है कि ये हेप्टेंस किसी और एंटीजन या किसी और प्रोटीन के साथ कंबाइन हो तब जाके ये एंटीबॉडी प्रोडक्शन को इंड्यूस कर पाते हैं और इसीलिए इन्हें इनकम्प्लीट एंटीजन कहते हैं. जो एंटीजन के बॉडी में एंटर होने पर इमीडिएटली एंटीबॉडी बनने लगता है उसे कंप्लीट एंटीजन कहते हैं और जिनके एंटर होने पर भी एंटीबॉडी प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं होता उन्हें क्या कहा जाता है? इनकम्प्लीट एंटीजेंस कहा जाता है. सो दैट वाज अबाउट कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट एंटीजेंस. अब हमने ये एंटीजेंस के बारे में डिस्कस किया है तो उतना ही इंपॉर्टेंट और एक चीज है दैट इज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स. हमारी बॉडी में ऐसे सेल्स हैं जिन्हें हम कह सकते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, मतलब एपीसी. एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स मतलब ऐसे सेल्स जो एंटीजन को एनगल्फ करते हैं और फिर उन्हें प्रेजेंट करते हैं टू द टी सेल्स. ओके, सो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स दे ट्रैप और engulf the antigen and present them to the T cells. किसे सौंप देते हैं? T cells को, क्योंकि T में क्या है? T हेल्पर है, T साइटोटॉक्सिक है, राइट. तो T साइटोटॉक्सिक सेल्स जो है वो उनके फ्रैगमेंट्स, एंटीजन के फ्रैगमेंट्स को भी डिमोलिश कर देंगे, राइट. नॉट ओनली एंटीजन, इन्होंने तो एंटीजन को ट्रैप करके किसे दे दिया? टी सेल को दे दिया. अब टी सेल क्या करेगा? फर्दर डिमोलिशन जो है, फर्दर ब्रेकडाउन जो है एंटीजन का, वो कौन करता है? टी सेल्स करता है. और यही काम किसका होता है? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का. तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में सबसे पहले जो आप याद रखोगे वो है मैक्रोफेजेस, दूसरे होते हैं डेंड्राइटिक सेल्स और थर्ड है बी सेल्स. ये तीनों ही एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है. मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो रेस्टिंग स्टेज में होते हैं, कोई ना कोई टिश्यूज में होते हैं, प्रेजेंट होते हैं और फिर ये मैक्रोफेज
मैक्रोफेजेस जो है वो फेगोसाइटिक होते हैं। ये एंटीजन को फेगोसाइटोसिस से अंदर ले लेते हैं और फिर इन्हें किसे दे देते हैं, टू द टी सेल्स। बाकी का आगे का जो ब्रेकडाउन का काम है एंटीजन का या फ्रैगमेंट्स को ब्रेक करने का काम है वो किसका है, टी सेल्स का काम है। डेंड्राइटिक सेल्स जो है वो हमारे स्किन में भी प्रेजेंट होते हैं और ये हमारे लिम्फोइड ऑर्गन्स में भी प्रेजेंट होते हैं। डेंड्राइटिक सेल्स कई अलग अलग तरह के होते हैं। सम ऑफ देम आर प्रेजेंट इन स्किन, सम ऑफ देम आर प्रेजेंट इन द लिम्फोइड ऑर्गन्स लाइक स्प्लीन, ठीक है, स्प्लीन में प्रेजेंट होते हैं। फिर दूसरे जो होते हैं वो हमारे लिम्फोइड ऑर्गन जैसे कि लिम्फ नोड्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ये डेंड्राइटिक सेल्स भी क्या करते हैं, दे विल बी ट्रैपिंग अप द एंटीजन और फिर उसे प्रेजेंट किसे कर देते हैं, टी सेल्स को। एंड सेम इज विद द बी सेल। बी सेल का मेन काम एंटीबॉडी बनाना है, इसीलिए बी सेल जब भी कोई एंटीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो उसे ट्रैप करके किसे दे देंगे, टी सेल्स को दे देंगे और फर्दर ब्रेकडाउन कौन करेगा, टी सेल्स करेगा। इसीलिए इन तीनों को क्या कहा जाता है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। हमारी बॉडी में तीन तरह के लाइंस ऑफ डिफेंस है। पहला लाइन ऑफ डिफेंस है फिजिकल और फिजियोलॉजिकल बैरियर, जिसे कहा जाता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मतलब फिजिकल और फिजियोलॉजिकल बैरियर। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस मतलब हमारे सेल्यूलर बैरियर और साइटोकाइन बैरियर। एंड द थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस इज अवर इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। मतलब हमारे पास तीन लाइन्स ऑफ डिफेंसेस हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में फिजिकल और फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस मतलब सेल्यूलर और साइटोकाइन बैरियर और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस मतलब हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। In the next lecture we will talk about the structure of antibody.